Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today I will go with the application of the normal form game, and this is a chapter I have taken from Osborne book, The Introduction to Game Theory by Martin J. Osborne. और ये हमारी बेसिक टेक्स्ट बुक है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, and this is a chapter number 3 which is about the Nash equilibrium. You must have heard this word Nash equilibrium, but now we are doing it with an application from the economic models. तो economics के अंदर if you have gone through, if you are just done with the Econ 101 course and Econ 201 course, so you must have gone through the Kuno models and Bertrand models and ये सारे के सारे. तो ये basically oligopoly के models हैं. और oligopoly क्या structure होता है? Oligopoly is a structure where there are two or more firms, but not a very large number of firms who are interacting, or फिर they make a decision, and then it makes a difference that whether it's a 2 firm, 3 firm, or some firms which are making. So इसकी जो खास बात होती है, there is strategic interdependence. इनकी जो decisions are strategically interdependent. So any decision made by any firm I, it's affecting firm J and is being affected by firm J. तो ये जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है, इंटरेक्टेड मोड है, इट मेक्स इट अ गेम थ्योरेटिक मॉडल. क्योंकि गेम थ्योरेटिक मॉडल के अंदर वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल इंटरेक्शन. योर बेस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर आर डूइंग. यू कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ what other are doing. So a simple example is that if suppose you talk about two companies, Nokia and Samsung, suppose these are the only two companies which are providing mobiles in the market. So if Nokia wants to launch any product and they want to settle the price, that three options are there: high, middle, low prices. So what returns they are expecting from charging high price or a low price or a middle price, dependent upon that what strategy is being taken by Samsung company. If Nokia is thinking of charging high price, but in comparison Samsung for the same product is charging a low price, so all the customer will be shifted to Samsung and they end up with nothing. So what outcome is coming with any strategy they are making in pricing is dependent upon what strategy is being taken by the other firm. So this interdependence make it a game theoretic model, and it's very interesting model in game theory. तो अब आज की क्लास के अंदर we will just see के ये जो मॉडलिंग है और किस तरीके से ये गेम थ्योरेटिक मॉडल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll check for the ingredients, whether they are in the game in this oligopolist model, whether we can consider them as game theoretic model, and if they are game theoretic model, so out of the options available for the solution, Nash equilibrium है या dominant strategy है या best response function Nash है, हम किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैव बैकग्राउंड फ्रॉम द नॉर्मल फॉर्म गेम्स के हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व द सिचुएशंस वी हैव डिफरेंट मेथोडोलॉजीज अवेलेबल, एंड वी चेक ourselves that which methodology will be useful in this particular situation. So what we'll do, first of all we'll check that whether it's a game theoretic modeling or not, and do it has all the ingredients जो कि गेम नॉर्मल फॉर्म गेम में होते हैं, एंड देन इफ इट इज, then what strategy or what methodology we will choose to solve these models, and then how we'll solve it and how we'll get the Nash equilibrium. So starting with the Cournot model. So Cournot model जो है ये 1838 में Cournot ने suggest किया था, and he talked about oligopoly structure, and he started with there can be two markets or more than two markets. If it is just two markets, it's called duopoly. If it is three markets, it's called triopoly, and it is if more than 2 and less than 15, then it is called oligopoly. अच्छा, अब if we talk about that whether it's a game theoretic or not, तो क्या होता है कि मार्केट के अंदर the firms are there, and firms are object करते क्या है, they sell products. तो जो नंबर ऑफ फर्म्स है जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच वी नीड टू सी if it is a game theoretic model or not. In the normal form game, there are three things important. Number is players, number two is actions, and number three is preferences or preference ordering या preferences है जो भी. तो players की अगर हम बात करें तो the players could have been 2 to 15. We will definitely start with 2 players, and then we can elaborate the result for more than 2 players. Actions क्या है? Actions है कि they are providing output in the market which could be a non-negative number. Non-negative का मतलब होता है it could be 0 or it could be positive. Negative नहीं हो सकता. और तीसरा क्या है? Payoff. Payoff है what return they will get
if they supply the product in the market, and of course it is profit. So profit is a payoff function. So तीनों ingredients are there. That means that this is a game theoretic model. So see, this is what we are going to do. So let me open the page. Yeah, it's right here. Oligopoly models and application to normal form games. ठीक है जी, सबसे पहले oligopoly model ingredients, यानी इसके जो 3 होते हैं, नंबर 1 प्लेयर, नंबर 2 एक्शंस, एंड नंबर 3 क्या है, पे ऑफ. प्लेयर है फर्म्स, सपोज कर 2 फर्म है तो फर्म 1 एंड फर्म 2. एक्शंस क्या है, क्यू आईज which belongs to 0 से infinity, यानी there can be any non-negative quantity where I varies from 1 to 2. 2 फर्म्स ले रहे हैं, अगर 2 से ज़्यादा लेंगे तो इसको n तक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम फर्म m तक कर देंगे. पे ऑफ क्या है, प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट ऑफ द फर्म आई. ये मैं आगे डिफाइन करूंगी ये कैसे निकलेगा. तो ये गेम थ्योरेटिक मॉडल है, ठीक है जी. तो अब हम बेसिक अजम्पशन ले लेते हैं. मैं बुक दोबारा खोल रही हूँ, इधर से मैं ले रही हूँ. ये देखिए, ये जनरल मॉडल है. प्रॉफिट हम बाद में लिखेंगे. ये हमारे पास है प्राइस. तो हमारे पास कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं. P alpha minus Q. So what we have firms. Let's say I am writing firms. हमारे पास है 1 से लेके n तक, ठीक है जी. तो n फर्म्स है, तो प्राइस का जो है P of Q is equals to alpha minus Q if Q is less than alpha and is equals to 0 if Q is greater than alpha, ठीक है. ये हमारे पास प्राइस इक्वेशन है. डिमांड फंक्शन जिसे कहते हैं, इनवर्स डिमांड फंक्शन, इसको इनवर्स डिमांड फंक्शन भी कहते हैं. व्हाट इज कैपिटल Q? कैपिटल Q इज इंडस्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है जी. और इंडस्ट्री प्रोडक्शन है, थोड़ा पता कर लेते हैं. ओके, इंडस्ट्री प्रोडक्शन है एंड कैपिटल Q is equals to Q1 plus Q2 से लेके Qn. So basically summation Qi's where I varies from 1 to n is capital Q. So ये small q जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्म I प्रोडक्शन. तो एक फर्म जो है वो स्मॉल क्यूज प्रोड्यूस करती है, एंड इफ यू ऐड अप सम ऑफ ऑल फर्म्स इट्स अ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, ठीक है जी. और आपका जो डिमांड फंक्शन है, इनवर्स डिमांड फंक्शन, वो इंडस्ट्री प्रोडक्शन में डिफाइन है. तो अगर मैं इसको रीफ्रेज करूं इसमें स्मॉल में, सो P इज अ फंक्शन ऑफ Q1 Q2 से लेके Qn इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Qn, एंड आई कैन राइट इट अल्फा माइनस समेशन Qi's I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये मेरा इनवर्स डिमांड फंक्शन हो गया. ये क्यों ज़रूरत है इसकी मुझे, क्योंकि मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ आगे. तो प्रॉफिट फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है. प्रॉफिट फंक्शन, पे ऑफ. तो प्रॉफिट जो है इट विल बी डिफाइंड नॉट फॉर इंडस्ट्री बट एवरी फर्म. सो आई विल राइट इन सबस्क्रिप्ट P सबस्क्रिप्ट I, ठीक है जी. और वो किस पे बेस करेगा, वो बेस करेगा जी Q1 पे, क्योंकि फर्म QI लिख देते, आई नहीं लिखते. अगर मैं इसको फर्म आई कह रही हूँ तो एक्चुअली हर फर्म का जो वो है अपना प्रॉफिट, वो सब फर्म्स की प्रोडक्शन पे बेस करेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन है, ठीक है. तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, टोटल रेवेन्यू ऑफ आई माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ आई. टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है, प्राइस टाइम क्वांटिटी. अब मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आई एम डिफाइनिंग दिस प्रॉफिट फंक्शन फॉर द फर्म. तो आई बेटर राइट द क्वांटिटी ऑफ द फर्म प्रोड्यूस बाय फर्म आई, क्योंकि ये जो है वो आई फर्म है, तो आई बेटर राइट इट आई के. द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म आई इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू इज प्राइस टाइम द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय फर्म आई, एंड प्राइस वो है जो इंडस्ट्री में चार्ज हो रही है, माइनस कॉस्ट. अब कॉस्ट फंक्शन जो है वो बुक में डिफाइन हुआ है, जो मैं पीछे डिफाइन करना भूल गई हूँ, तो मैं इसको ऊपर ही लिखती हूँ. यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन को यहाँ पे लिख देती हूँ.
कॉस्ट फंक्शन वो क्या डिफाइन हुआ है, वो डिफाइन हुआ है सी आई इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू क्यू आई। इसका क्या मतलब है, वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट फंक्शन ऑफ द फर्म 1 है ना, वो है स्मॉल सी, कोई स्मॉल सी है और Q1 है, मतलब द कॉस्ट ऑफ द फर्म 1 डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्शन ऑफ फर्म 1। और ये स्मॉल सी क्या है, ये स्मॉल सी कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सी पॉजिटिव नंबर है, जिसे मार्जिनल कॉस्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी, और वो पॉजिटिव है। इसी तरह से 2 के लिए भी अलग डिफाइन हो जाएगा। तो लेट्स यूज दिस इक्वेशन बिलो। यहाँ पर आएगा तो सी फर्म 1 का कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, फर्म 1 का कॉस्ट फंक्शन होगा जी, नीचे ले जाओ इसे, ये आ गया स्मॉल सी इंटू क्यू आई, ये स्मॉल आई का फर्म कॉस्ट फंक्शन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो आई कैन राइट यू नो P माइनस सी इंटू क्यू आई, ऐसे ही है ना। और फिर अगर मैं इसको प्रॉफिट फंक्शन को प्रॉफिट 1 कर लूं तो बेसिकली क्या बनता है, P माइनस सी इंटू Q1, आई को मैंने 1 कर दिया। अब इसमें जो अजीब चीज है वो है P, क्यों, इसलिए कि ये एक मॉडल है विच इज टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट क्वांटिटी फर्म 1 शुड प्रोड्यूस सच दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, माई प्रॉफिट फंक्शन शुड बी इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एज आई कैन सी फ्रॉम हेयर। तो इसका मतलब है वी नीड टू रिप्लेस इट्स वैल्यू। कहाँ से करेंगे, हमने पीछे डिफाइन किया है P इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस क्यू, है ना, एंड व्हाट इज Q, Q इज इक्वल्स टू समेशन क्यू आई। तो आई कैन रिप्लेस दिस वैल्यू, आई कैन राइट अल्फा माइनस समेशन क्यू आई, और ये जो P है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी कहाँ पर, यहाँ पर। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा माइनस समेशन क्यू आई, अगर मैं प्रॉफिट ऑफ फॉर द फंक्शन आई कर रही हूँ, ये P की वैल्यू आ गई माइनस सी इंटू क्यू आई, ओके, और ये क्या आ जाएगा अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 सो ऑन माइनस Qn माइनस सी इंटू क्यू आई इज प्रॉफिट आई, ठीक है। अब हम ये हमारे पास वो फंक्शन है जिसे हमने मैक्सिमाइज करना है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि आसान बनाते हैं, एंड लेट्स डिफाइन दैट देयर आर ओनली 2 फर्म्स, केस ऑफ डायोप्ली, 2 सिर्फ फर्म है, केस ऑफ, इसको हम कहते हैं डायोप्ली। देयर आर 2 firms only in the industry and they are producing Q1 and Q2 and they are facing price alpha minus capital Q, where capital Q is the sum of Q1 Q2, so I can write it like this very easily, ठीक है। और ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई जिसे हम यूज करेंगे, और फिर हमारे पास कॉस्ट की इक्वेशन जो है सी आई, वो है हमारे पास स्मॉल सी इंटू क्यू आई, वेयर आई इज 1 और 2। तो अगर मैं फर्म 1 के लिए डिफाइन करूंगी तो C1 इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू Q1, ओके, दैट इजी। और हम दूसरी इक्वेशन जो है वो इस तरह की इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। इसी तरह से C2 जो है वो हो जाएगा C टाइम्स Q2, ओके, वेयर C इज एनी पॉजिटिव नंबर। ये हमारे पास आ गया, तो ये मैं इक्वेशन ये वाली यूज करूंगी। नाउ व्हाट डू आई हैव, गेम थ्योरेटिक मॉडलिंग, फर्म है फर्म 1 एंड फर्म 2, पहला इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। एक्शंस है टू प्रोड्यूस क्यू आई विच बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी, दूसरा इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। और पे ऑफ फंक्शन है P ऑफ आई इज इक्वल्स टू टी आर आई माइनस टी सी आई, टी आर आई इज P टाइम्स क्यू आई माइनस टी सी आई इज इक्वल्स टू C टाइम्स क्यू आई, एंड P की वैल्यू जो है वो है अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है जी, इंटू Q1 कह लें अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट 1 कह रहे, माइनस CQ1। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है ये प्रॉफिट की इक्वेशन आ गई जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो इससे मेरे पास नैश इक्विलिब्रियम आएगा। तो इफ आई डिफाइन, आई विल स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ फर्म 1 और फिर मैं इसको लेटर ऑन इसको एलैबोरेट करूंगी फर्म 2 के लिए। तो स्टार्ट वर्किंग कैसे निकालना है इसको, तो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव profit of the firm 1 dependent on Q1 and Q2 is equals to alpha minus Q1 minus Q2। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास P of Q है, जो P आपने निकाला P into Q1 minus C times Q1,
इसको जरा सा सिंप्लीफाई करते हैं और जस्ट ओपन इट। तो अल्फा माइनस Q1 इंटू Q1, ठीक है, ये मैंने इधर इसको इकट्ठा कर दिया है और मैं इसको इसके अंदर माइनस अल्फा माइनस Q2, मैं आपको ना ऐसा करती हूँ कि डिटेल में करके दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि इसी पेज के ऊपर सारा कुछ आए। तो ये अल्फा Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस CQ1। अब देखो Q1 की कौन कौन सी वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, इनको मैं कंबाइन करूंगी। तो ये अल्फा माइनस C, ठीक है, ये वाला टर्म लिया और अब मैं ये वाला लूंगी माइनस Q2, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं और बाहर लिखेंगे Q1, और जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना Q1 स्क्वायर, इसको एक तरफ लिखेंगे। और ये क्या चीज़ बन रही है, ये हमारा प्रॉफिट वन फंक्शन बन रहा है। अब इस प्रॉफिट वन फंक्शन को देखो तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन नेचर। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट इसका वेरिएबल है, इसमें है प्रॉफिट वन, ठीक है जी। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो है जी Q1। तो एक्स एक्सिस पे Q1 आएगा और इधर पे पाई वन आएगा, पाई वन, ठीक है जी। और इसी ग्राफ कैसा बनेगा, ये है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्वाड्रेटिक है ये फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक दो तरह के ग्राफ बनते हैं, या फिर यू बनता है या फिर एक, यानी ये क्वाड्रेटिक फंक्शन यू बनता है या फिर यू बनता है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है, ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ Q1 स्क्वायर पे। तो अगर वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो फिर ये वाला ग्राफ बनेगा। तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स ये इंटरसेप्ट्स है और ये जो वो है जिसके ऊपर फंक्शन का मैक्सिमम आता है। तो वे ये हाउ डू वी गेट इट, वी विल डिफरेंशिएट प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q1 इक्वेटेड टू 0 एंड फ्रॉम देयर विल गेट दिस वैल्यू। तो ये सारा पिछला वाली प्रोसेस चल रहा है, कुछ नई बात नहीं है इसके अंदर। तो अगर मेरे पास ये प्रॉफिट फंक्शन है, प्रॉफिट वन इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस C माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। तो इंटरसेप्ट के लिए हम एक दफ़ा में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 0 लेते हैं, दूसरी दफ़ा में डिपेंडेंट को। इफ़ आई टेक Q1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्पली मीन पाई वन इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है फंक्शन विल पास थ्रू ओरिजिन। एंड इफ आई टेक पाई वन इज इक्वल्स टू 0, दैट सिंपली मीन्स अल्फा माइनस C माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैं Q1 को फैक्टर आउट कर लूँ तो अल्फा माइनस C माइनस Q2 माइनस Q1 होल, यहाँ से बाहर है Q1 0। अब देखो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट इज 0, सो इधर दिस पार्ट इज 0 और दैट पार्ट इज 0। इफ Q1 इज 0 तो विल जस्ट गेट बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 0 0। लेकिन हम दूसरा अगर 0 करते हैं, अल्फा माइनस C माइनस Q2 माइनस Q1 is equals to 0, तो what do we get, we get the value of Q1 which is equals to अल्फा माइनस C माइनस Q2, ओके। तो ये आपके पास एक Q1 का इंटरसेप्ट आया, तो Q1 की एक वैल्यू आई है। ये Q1 की वैल्यू जो है, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन C, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पॉजिटिव नंबर है और उसमें से Q2 माइनस हो रहा है, तो बेसिकली ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। सो इट विल बी इन द राइट साइड। सो एक्चुअली मैं इसको जरा बड़ा सा बना के दिखाऊं, छोटा सही क्लियर नहीं हुआ। तो ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमारे पास जो बेसिकली सिचुएशन ये है कि ये वाला पॉइंट है एक, ये वाला पॉइंट ये वाला आया हुआ है। तो ये आया हुआ है अल्फा माइनस C माइनस Q2, ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारे पास। और अब क्या रह गया, ये वाला पॉइंट निकाला, और इस वाले पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, दिस इज बेसिकली अ वैल्यू ऑफ Q1 एट विच द फंक्शन इज मैक्सिमम, सो द स्लोप एट दैट फंक्शन एट दिस पॉइंट विल बी 0। सो कौन सा फंक्शन है हमारे पास, प्रॉफिट वन फंक्शन है। उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस C minus Q2, out is Q1 minus Q1 square. And what is happening at this point, the slope is getting 0. So let's take the slope, okay, with respect to Q1 and make it 0. तो slope आप निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस C माइनस Q2, इसका डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 Q1 एंड मेक इट इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो Q1 की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा माइनस C माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो इंटरसेप्ट आ रहा था ना, ये वाला, ये इसकी हाफ वैल्यू आ रही है। तो अगर हाफ है इसका मतलब है ये पॉइंट,
अगर ये अल्फा माइनस सी माइनस Q2 है तो ये अल्फा माइनस सी माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2 होना चाहिए. सो ये वो Q1 की वैल्यू है जिसके ऊपर प्रॉफिट लेवल मैक्सिमम है. तो so what do we have? So if I am talking about two firms case, so what do I have? I have basically Q1 is equals to alpha minus C minus Q2 over 2. ये वो है. This is Q1 level at which firm 1 maximize profit, right? तो इसका मतलब है कि अगर ये वो फंक्शन है and it's depend on Q2, so level of Q2 will determine that what should be the corresponding production to be made by Q1 such that they are gaining highest profit. आप देखो इसके अंदर ये Q2 पड़ा हुआ है. So basically ये क्या चीज निकली है? ये निकला है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 1. किस पे डिपेंड कर रहा है? ये Q2 पे डिपेंड कर रहा है. So B1 Q2 is equals to alpha minus C minus Q2 डिवाइडेड बाई 2. ये बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन निकला हुआ है. और बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन क्या होता है? इट्स सर्टन लेवल ऑफ क्वांटिटी द फर्म 1 शुड प्रोड्यूस. क्योंकि दोनों फर्म सिमेट्रिक है तो सिमिलरली हम बेस्ट पूरा प्रोसेस अगर फर्म 2 के लिए रिपीट करें, यानी अब हम अगर इसको मैं जरा हाईलाइट कर लेती हूँ बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन को यहाँ पे. लेकिन अगर मैं साइड के ऊपर प्रॉफिट 2 लिखूँ तो वो क्या आएगा? TR2 माइनस TC2. TR2 is P times Q2 minus C times Q2. So this is actually alpha minus Q1 minus Q2 into Q2 minus CQ2. ये देखो ये पूरा फंक्शन वही है, सिवाय इसके कि Q1 Q2 और Q2 Q1 में रिप्लेस हो गया. तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा? इसका मतलब है जब मैं इसको पूरी वर्किंग वही करूंगी ना तो अल्टीमेटली मेरे पास बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन आएगा किसका? फर्म 2 का. और वो क्या आएगा वो मैं यहाँ लिख रही हूँ B2. देखो यहाँ B1 था तो 2, यानी 2 को 1 और 1 को 2 कर दें तो सेकेंड फंक्शन आएगा. B2 किस पे डिपेंड करेगा? वो Q1 पे डिपेंड करेगा. और आंसर क्या बनेगा? अल्फा माइनस C माइनस यहाँ पे Q2 है ना तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2. और ये क्या बना? बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 2. और वो क्या है? बेसिकली वो अगर देखें तो वो what quantity firm 2 should produce such that they are maximizing profit. So best response function is nothing but just the idea that what quantity firm 1 should produce and what quantity firm 2 should produce such that they are maximizing profit. And the quantity decision of the firm 1 dependent upon what firm 2 is doing and quantity decision of firm 2 dependent upon what firm 1 is doing. तो अगर मैं इसको basically अलग से लिखूं तो best response function क्या है? ये है. और basically I can replace B1 Q2 with what? With the quantities, क्योंकि ये it's nothing but a quantity. So best response 1 is the decision of the quantity by firm 1 and it's been based on this equation because this is an equation which will guarantee the maximum of the profit. Similarly, best response function of the firm 2 is nothing but a quantity produced by firm 2 dependent upon what is being decided upon फॉर्म 2. अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. ठीक है जी. एंड नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा? आई नीड टू वर्क आउट द स्ट्रेटेजी प्रोफाइल एंड स्ट्रेटेजीज किस चीज की है? द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग दैट व्हाट क्वांटिटी फॉर्म 1 शुड प्रोड्यूस एंड फॉर्म 2 शुड प्रोड्यूस सच दैट दे आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. सो जो हमारा नैश इक्विलिब्रियम निकलेगा दैट वुड बी द आंसर ऑफ व्हाट क्वांटिटी, यानी Q1 स्टार एंड Q2 स्टार निकलेगा. और वो कहाँ से निकलता है? वो बेस्ट रिस्पॉन्स की इंटरसेक्शन से निकलता है. तो इसका मतलब है इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है. तो इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए इसको फिर हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि इक्वेशंस एक्चुअली में है क्या. सो आई एम राइटिंग दीज इक्वेशंस अगेन इन अ डिफरेंट वे. आई कैन राइट Q1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस C बाई 2 माइनस 1 बाई 2 Q2. राइट, इसको मैंने स्प्लिट कर लिया. इसी तरह अगर मैं Q2 को लिखूंगी तो आई विल राइट अल्फा माइनस C बाई 2 माइनस 1 बाई 2 Q1. सो अगर आप और से देखो तो these are the best response of firm 1 given Q2 and this is the best response of firm 2 given Q1. और इसका इंटरसेक्शन जो होगा, इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इज नैश इक्विलिब्रियम. अच्छा, तो नैश इक्विलिब्रियम के रिजल्ट में क्या निकलेगा? Q1 स्टार एंड Q2 स्टार. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मेरे एक्सिस क्या होंगे? मेरे एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस होगा Q1 और x2 होगा Q2. So basically if I am trying to make the graph of this equation, I am trying to make Q2 as a function of Q2. So basically आप देखो कि ये आपके पास क्या है,
Q1 एज अ फंक्शन ऑफ Q2, अगर आप इसको लिखो इक्वेशन फॉर्म में, सो व्हाट डू यू हैव, इसी को लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है. सो कैन यू सी इट्स अ लीनियर इक्वेशन. Q1 Q2 वेरिएबल्स है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन बननी है, ठीक है जी. तो जरा मैं इसको करती हूँ, ट्राई टू मेक द इक्वेशन. तो I have Q1 is equals to alpha minus C minus Q2 divided by 2. I can make it 2Q1 is equals to alpha minus C minus Q2, and I can make it 2Q1 plus Q2 is equals to alpha minus C. ये मेरी एक इक्वेशन होगी जिसको मैं यूज करूंगी सोल्यूशन के लिए. और दूसरी इक्वेशन है Q2 is equals to alpha minus C minus Q1 divided by 2. So this is Q2 is equals to alpha minus C minus Q1. और अगर मैं Q1 को इधर ले आऊँ तो Q1 plus 2Q2 is equals to alpha minus C. ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी जिसको मैं यूज करूंगी ग्राफिंग के लिए. तो इक्वेशन अगर मैं इस वाली इक्वेशन को लेके चलती हूँ, I put Q1 is equals to 0. मैं क्या कर रही हूँ, I'm trying to figure out the intercepts, and intercepts जो है वो उस intercept से I'll be making the graph. So if I take Q1 is equals to 0, then ओके. तो अगर हम इफ यू टॉक अबाउट दैट वी, ये हमारे पास है बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, और इनका इंटरसेक्शन जो होगा दैट वुड बी नाश इक्विलिब्रियम. सो इफ यू जस्ट लुक एट the best response function, this one, huh? तो first thing we would like to do is to make a graph. तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है कि we always work with intercepts. So I take Q1 0, so that would be 0 plus Q1, 2 into 0 plus Q1, plus Q2 is equals to alpha minus C, and that is थोड़ा सा गलत हो गया, इसको मैं दोबारा करती हूँ. ओके, यहाँ पे लेते हैं, ये इधर पे. सो वी हैव व्हाट, 2 into 0 plus Q2 is equals to alpha minus C. So practically Q2 is equals to alpha minus C. ये आपके पास एक इंटरसेप्ट आ गया Q2 की वैल्यू. दूसरी चीज आप लोगे, वो आप लोगे, क्या लोगे, Q2 is equals to 0. If you take this, so you will have 2Q1 plus 0 is equals to alpha minus C. So Q1 की प्रैक्टिकली वैल्यू आ जाएगी alpha minus C by 2. ये दूसरी वैल्यू है. और इन दोनों इंटरसेप्ट से क्या बनेगा, बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्म 1 गिवन Q2. तो इसको जरा मैं कर लेती हूँ. लेट्स से अगर मैं यहाँ पे Q1 की वैल्यू ये अल्फा माइनस C ले लेती हूँ, इसको मैं नीचे बना लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए होगी. इसको हम नीचे रख लेते हैं, यहाँ बनाते हैं, सही है, इधर पे. तो ये सॉरी Q1 Q2, ठीक है. लेट्स टेक इट अल्फा माइनस C. ऐसे ही हम इंडेक्स ले रहे हैं, अल्फा माइनस C, नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस C. इफ समटाइम इट विल, वैसे तो नेगेटिव आएगी नहीं क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन C, अल्फा माइनस C, ठीक है जी. तो ये अल्फा माइनस C कहाँ पर आ रहा है, ये Q2 की वैल्यू है ना, ये वाली. तो Q2 अल्फा माइनस C कहाँ पर है, इट इज राइट हियर, ओके, ये वाली पॉइंट. और अल्फा माइनस C बाई 2 का मतलब है अल्फा बाई C का हाफ. अल्फा माइनस C Q1 की वैल्यू है, तो Q1 यहाँ पर अल्फा माइनस C है, तो उसका हाफ किधर आएगा, इधर पर आएगा. तो ये है अल्फा माइनस C बाई 2. और ये दोनों पॉइंट्स मिला के क्या बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हैं. और ये जो लाइन है, ये लाइन है क्या, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ द फर्म 1 गिवन Q2. अब मैं एक दूसरा क्या वर्कआउट करूंगी, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ फर्म 2 गिवन ये. तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ, उसका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन जो था वो था Q1 plus 2Q2 is equals to alpha minus C. Remember this one, ये वाला. So I put Q1 is equals to 0. What I will get, I will get 0 plus 2Q1 is equals to alpha minus C, और Q1 is equals to alpha minus C by 2. किसकी वैल्यू आई है, Q1 की वैल्यू आई है. एक वैल्यू को ये मेंशन कर लें, और उसके अलावा दूसरी वैल्यू को हम फिर निकालते हैं यहाँ पे. सो अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, तो अगर आपके पास है Q2 is equals to 0, so basically Q1 plus 2 into 0 is equals to alpha minus C. This implies Q1 is equals to alpha minus C. ये याद रखिए, ये दोनों वैल्यूज किसके लिए इस्तेमाल होंगी, ये दोनों बनाएंगी मिलके बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ऑफ Q from 2 given Q1. तो लेट्स वर्क इट आउट. Q1 की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस C है, तो Q1 की वैल्यू आ गई ये वाली, ठीक है. मैं इसके लिए डिफरेंट कलर अप्लाई कर लेती हूँ.
तो अगर हम फर्म 2 का बेस्ट रिस्पॉन्स बनाएंगे तो Q1 की वैल्यू पड़ी हुई है अल्फा माइनस सी, और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये Q1 को 0 पुट किया तो ये Q2 था ना, ये Q2 था और ये Q2 की वैल्यू है, सही है। तो Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू अल्फा माइनस सी, Q2 की वैल्यू है हाफ ऑफ अल्फा माइनस सी। तो Q1 की वैल्यू हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे और Q2 की वैल्यू हाफ ऑफ अल्फा माइनस सी क्या हो जाएगी, अल्फा माइनस सी बाई 2। तो ये हमारे पास ये लाल वाला किसका है, ये बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है किसका, फर्म 2 का गिवन Q1। इंटरसेक्शन नजर आ रही है, ये है इंटरसेक्शन। ग्राफ सही बना होता तो ये बिल्कुल मिडल में आनी थी। तो ये इसका मतलब है नैश है, ठीक है जी। ये क्या है, Q1 स्टार है और ये क्या है, Q2 स्टार है। तो हम इसे वर्कआउट कैसे करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये जो आपकी है ना आपकी ये जो इक्वेशन, इसको आप इंटरसेक्शन निकालो। तो इक्वेशन आपके सामने है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ सामने। यहाँ पे क्या इक्वेशन है, ये है ब्लैक मार्कर से, ये है जी आपकी, यहाँ पे लिख रही हूँ, फाइंडिंग नैश एल्जेब्रिकली। तो आपकी इक्वेशन है 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस सी। दूसरी इक्वेशन है Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस सी। क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। पहली इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी 2Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस सी। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2Q1 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा माइनस सी। ठीक है, इसको मैं नीचे रख लेती हूँ, 2 टाइम्स अल्फा माइनस सी। इसको सॉल्व करें, माइनस करें, माइनस माइनस इन माइनस कट गया, यहाँ से क्या आया माइनस 3Q2, यहाँ से क्या आया अल्फा माइनस सी माइनस 2 टाइम्स अल्फा माइनस सी। यहाँ से अल्फा माइनस सी को कॉमन निकाल लें तो क्या आ रहा है 1 माइनस 2। सो बेसिकली क्या आ गया, माइनस ऑफ अल्फा माइनस सी इधर से आ गया। सो बेसिकली व्हाट डू वी हैव, माइनस 3Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस सी। तो ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। सो बेसिकली Q2 की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस सी बाय 3। ये क्या है, ये Q2 स्टार है। ओके ये बेस्ट रिस्पॉन्स क्यों नहीं है, क्योंकि बेस्ट रिस्पॉन्स का था, यानी वी कांट कॉल इट बेस्ट रिस्पॉन्स। बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये था, देखो जब भी बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन होता है ना, उसमें Q1 में Q2 पड़ा होता है। जब तक Q1 में Q2 पड़ा हुआ है, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन हैज टू बी अ सर्टेन डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट फॉर्म 1 इज प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट फॉर्म 2 इज प्रोड्यूसिंग। सो फॉर्म 2 की प्रोडक्शन जो नैश इक्विलिब्रियम में है वो अल्फा माइनस सी बाय 3 है। और क्योंकि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब है दे आर एग्जैक्टली द सेम। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फॉर्म 1 जब हम इसको इस नंबर को जो है इंसर्ट करेंगे, यानी ये जो है हमारे पास ये, इसको हम इंसर्ट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, विल गेट बैक Q1 स्टार। और वो जो Q1 स्टार बन रहा होगा वो भी वही बन रहा होगा जो ये आया हुआ है, यानी क्योंकि दोनों फॉर्म सिमेट्रिक है। तो ये हमारे पास क्या है, नैश क्या है हमारे पास, नैश है जी Q1 स्टार एंड Q2 स्टार एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस सी बाय 3, अल्फा माइनस सी बाय 3। समझ आया। तो इसका मतलब है कि एक फर्म 1 को जो है इतना प्रोड्यूस करना चाहिए और फर्म 2 को इतना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये हमारे पास नैश आ गया। जो ग्राफ में हमारे पास नजर आ रहा है ये इंटरसेक्शन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स, ये वाला पॉइंट। तो ये अल्फा माइनस सी बाय 3 है और ये अल्फा माइनस सी बाय 3 है। ठीक है जी। तो क्या हम कर रहे थे, लेट मी हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव डन। वी वर टॉकिंग अबाउट ओलिगोपोली, ठीक है जी, एंड वी स्टार्टेड विद 2 फर्म्स। ओके और इन 2 फर्म्स के अंदर, ये मैं रिव्यू कर रही हूँ, 2 फर्म्स के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी P इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास इंडस्ट्री डिमांड फंक्शन था, कौन सा वाला, इनवर्स। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास दूसरी जो चीज थी, कैपिटल Q जो था वो Q1 प्लस Q2 था। इसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन जो था वो था अल्फा नहीं P टाइम्स Q1 माइनस C टाइम्स Q1। अच्छा C फंक्शन भी था, CI फंक्शन जो था गिवन QI इज इक्वल्स टू C टाइम्स QI। ठीक है जी, I वेरीज फ्रॉम 1 to 1। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास आता था अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है जी, और इंटू Q1 माइनस C Q1। ठीक है जी। और ये प्रॉफिट फंक्शन जो है इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा माइनस C माइनस Q2 इंटू
Q1 माइनस Q1 स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन आता है। जब हम इसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पे Q1 लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट 1 लेते हैं, तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है जी। और ये वैल्यू आती है जो हमें बेस्ट रिस्पॉन्स दे देती है, बेस्ट रिस्पॉन्स। और वो हमारे पास क्या आ रहा था, अल्फा माइनस सी माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और ये किसकी वैल्यू थी, ये Q1 की वैल्यू थी। इसी तरीके से जब हम दूसरी वाले प्रॉफिट फंक्शन को करते हैं और यहाँ पे Q2 और पाई 2 करेंगे, तो वो भी इसी तरह का ग्राफ आएगा। और उसमें ये जो आएगी वैल्यू Q2, ये बेस्ट रिस्पॉन्स आएगा फ्रॉम 2 का गिवन Q1, और उसकी वैल्यू आएगी अल्फा माइनस सी माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। जब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन, तो हमारे पास बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्म 1 आता है गिवन Q2 और बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्म 2 आता है गिवन Q1। इसमें हम करते हैं अल्फा माइनस सी माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इसमें हम करते हैं अल्फा माइनस सी माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्योंकि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है, एक क्वांटिटी है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस सी माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। और इसकी जगह लिख सकते हैं B2 की बजाय Q2 इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस सी माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई और ग्राफिंग करते हैं, तो इनकी जो हमारे पास ग्राफ आती है वो इस तरह से आती है। फॉर्म 1 का ग्राफ ऐसे आता है बेस्ट वन रिस्पॉन्स का। ठीक है, ये बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्म 1 गिवन Q2 है। ये वैल्यू क्या होती है, अल्फा माइनस सी बाई 2। और जो फॉर्म 2 है, यहाँ पे आप लिखते हो Q1 और यहाँ पे लिखते हो Q2। और जो फॉर्म 2 है उसका ग्राफ आता है ऐसे करके। और ये क्या वैल्यू है, अल्फा माइनस सी बाई 2। ये वैल्यू अल्फा माइनस सी। और ये जो नैश इक्विलिब्रियम है, इसकी वैल्यू आ रही है जो हमने कैलकुलेट की है अल्फा माइनस सी बाई 3। और ये भी आ रही है अल्फा माइनस सी बाई 3। और ये नैश इक्विलिब्रियम है, नैश। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी है। अच्छा, अब ये मैंने एक रिव्यू छोटा सा कर दिया आपको, ताकि आपको आसानी हो उसको समझने के लिए, और आपको एक मतलब बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े इस बारे में। तो व्हाट डू वी हैव फर्म्स है, एंड वी हैव बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शंस, बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। ठीक है जी, वी हैव Q1 स्टार, वी हैव Q2 स्टार, वी नीड टू गेट P स्टार, हाँ, and we have to get Q star total for production. We have Q1 star plus Q2 star, and we want to have P star which is equals to alpha minus capital Q star. ठीक है, ये सारी चीजें हमने निकालनी है। और आखिर में हमने क्या निकालना है, प्रॉफिट स्टार आई। हर फर्म का अलग अलग निकलेगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करनी है इसमें से। तो मैं आपके सामने करती हूँ कि मेरे पास Q जो है कैपिटल Q है वो है Q1 प्लस Q2। ठीक है जी, और कॉस्ट जो है वो मेरे पास है C इंटू Q, C1 है Q1 और कॉस्ट ऑफ 2 है C इंटू Q2। ये सब इक्वेशंस यूज होंगी कैलकुलेशंस के लिए। इसके अलावा मेरे पास P जो है वो है अल्फा माइनस Q, कैपिटल Q। ठीक है जी, और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है जी क्या था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो जो भी हमारे पास मैं दोबारा से ऊपर से देख के लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं दोबारा से सारी कैलकुलेशंस करूँ। सो प्रॉफिट फंक्शन इज एक्चुअली अल्फा माइनस सी माइनस Q2 Q1 अल्फा माइनस सी माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। इन इक्वेशंस को यूज करना है हमने, और हमने सारी जो है ना वो वर्किंग करनी है, और ये सारे कॉलम्स हमने फिल इन करने हैं। तो नैश इक्विलिब्रियम के हिसाब से Q1 स्टार जो आया वो अल्फा माइनस C बाई 3 आया, और Q2 स्टार जो है वो भी आया अल्फा माइनस C बाई 3। इनको जमा कर लें तो कैपिटल Q स्टार बनेगा, Q1 स्टार प्लस Q2 स्टार विच इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस C बाई 3 प्लस अल्फा माइनस C बाई 3। जब आप इसको एड इन करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2/3 ऑफ अल्फा माइनस C। समझ आ गया ये कैसे निकालते हैं, पता है ना। ये इसको अगर मैं देखूं तो ये दोनों जमा हो रहे हैं एक जैसे नंबर से, तो 2 टाइम्स आ जाएगा ना, तो 2 टाइम्स 2/3 ऑफ अल्फा माइनस C। अब P भी यहाँ से निकाल सकते हैं, P स्टार इज अल्फा माइनस Q स्टार। तो अल्फा माइनस Q स्टार क्या है, 2/3 ऑफ अल्फा माइनस C। इसको जरा ओपन करते हैं, अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 3, और ये माइनस और ये माइनस प्लस,
तो 2/3 ऑफ सी। सो ये देखो ये 1 ऑफ अल्फा है, इसको जरा अल्फा को बाहर निकालो तो क्या आएगा 1 माइनस 2/3 प्लस 2/3 ऑफ सी। तो 1 माइनस 2/3 क्या होता है, बेसिकली 1/3 रह जाता है ना। तो 1/3 ऑफ अल्फा प्लस 2/3 ऑफ सी, इसको हम अगर कंबाइन करें तो अल्फा प्लस 2c डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास प्राइस आ गई है जो कि फर्म चार्ज करेगी। ईच फर्म विल चार्ज दिस प्राइस। ठीक है जी। तो पी स्टार की वैल्यू हमारे पास बनी अल्फा प्लस 2c बाई 3। ठीक है जी। क्यू स्टार की वैल्यू हमारे पास बनी क्या बनी, पीछे थी 2/3 ऑफ अल्फा माइनस सी। और क्यू आई स्टार की वैल्यू हमारे पास बनी अल्फा माइनस सी ओवर 3। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम अभी तक निकाल चुके। अब चौथा रिजल्ट क्या हमें चाहिए, हमें चौथी चीज चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हमने डिफाइन किया हुआ है जी अल्फा माइनस सी माइनस Q1 Q2, और यहाँ भी बाहर आता है Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। जब ये स्टार है ना तो ये भी स्टार होगा, ये भी स्टार होगा और ये भी स्टार होगा। तो स्टार की वैल्यूज हमें ऑलरेडी मालूम है। तो प्रॉफिट स्टार हमारा क्या आएगा अल्फा माइनस सी माइनस Q1 स्टार Q2 स्टार क्या था अल्फा माइनस सी बाई 3। तो अल्फा माइनस सी बाई 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बाहर अल्फा माइनस सी बाई 3 माइनस अल्फा माइनस सी बाई 3 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस सी, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं इसके साथ अल्फा माइनस सी बाई 3, और फिर इसी तरीके से ये अल्फा माइनस सी बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा माइनस सी बाई 3 का होल स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा माइनस सी बाई 3 का होल स्क्वायर, ये वाला ये है। ठीक है जी। और ये मल्टीप्लाई करके आया। तो ये तो बड़ी आसानी से कैलकुलेशन हो जाएंगी इसकी। कैसे होंगी कि अगर आप और से देखो तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, ये अल्फा माइनस सी का स्क्वायर ही बन रहा है ना बाय 3। और अगर मैं इसको देखूं तो ये आ रहा है अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 9, और ये क्या आ रहा है अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 9। मैंने 3 को स्क्वायर से बाहर निकाल लिया। तो बेसिकली क्या है ये फ्रैक्शंस है और सारी कॉमन फ्रैक्शंस है इसमें। इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड 3 से डिवाइड कर दो तो ये 3 टाइम्स अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 9 आ गया। मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिनोमिनेटर्स को जरा सेम कर रही हूँ ताकि मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं सबको कर दूंगी ये सेम। अच्छा अब देखो इसमें क्या नजर आ रहा है, कॉमन नजर आ रहा है जी अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 कॉमन नजर आ रहा है। तो कॉमन जरा निकाल के देखें, अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 को बाहर निकालें तो बेसिकली अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा -1, यहाँ से बचा -1। सो अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 9 into 3 minus 2 which is 1। So actually answer is alpha minus c का होल स्क्वायर बाय 9। ये क्या चीज है, ये है जी प्रॉफिट। किसको मिल रहा है, जो हर फर्म को मिल रहा है। ये देखो अगर आप याद हो तो प्रॉफिट के नीचे हमने लिखा था आई, तो आई का मतलब है दिस इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म 1 एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म 2। सेम क्यों है सॉरी, क्योंकि दोनों फर्म जो है वो सिमेट्रिक है। तो मैं अब क्या करूंगी, मैं इसी के आगे यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू भी डाल देती हूँ ताकि मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है ना वो सामने नजर आ जाए। तो ओके सो ये है जी अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर बाय 9, अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ये हमने इसके साथ ही ऐड कर लिया। ये हमारी एक तरफ हमने नोटिस कर लिया। अच्छा अब हमारे पास ओलिगोपोली की सारी कैलकुलेशंस आ गई इंक्लूडिंग प्रॉफिट, प्राइस, टोटल इंडस्ट्री प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेटेड है। अब लेट्स हैव अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। सपोज करो हमारे पास क्या था ओलिगोपोली में, वी हैड अ प्रॉफिट फंक्शन ऑफ फर्म 1 वेयर वी वर सेइंग that was P times Q1 minus C times Q1, और P था अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे था Q1 माइनस C Q1। हाँ, और उसकी बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, अल्फा माइनस C माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, ये हमने प्रॉफिट 1 को डिफाइन किया। जब हमारी जम्पशन थी कि सिस्टम है ओलिगोपोली और कितनी फर्म्स हैं, फर्म्स थी इसमें 2। अगर फर्म्स हो जाए 3 या फर्म हो जाए 1, हाँ पहले हम 1 को करते हैं, अगर फर्म हो जाए 1 इसका मतलब है सिर्फ फर्म 1 एग्जिस्ट कर रही है, फर्म 2 की प्रोडक्शन नहीं आ रही, 0 है, इज इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0, फर्म 1 सिर्फ पॉजिटिव है। तो अगर आई वॉन्ट टू चेंज दिस एक्सप्रेशन with this information कि there is only one firm, so isn't it like monopoly? Yeah, it's monopoly. If I just exclude one firm and I say the market has only one firm, not two firm, so this oligopoly will become a monopoly. तो monopoly हो तो function कैसे change होगा? Look, Q2 को हम assume करते हैं 0, so firm 1 आ गई P अल्फा, इसमें ले लेती हूँ ना, इसमें अल्फा माइनस C माइनस 0 है Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। सो बेसिकली इक्वेशन में आप देखो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस सी इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर, ये है प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है जी। अब बेस्ट रिस्पॉन्स जब आप निकालोगे, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कैसा, वही वाला Q1 बाई 1, ये देखिए ये आएगा, ये आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप Q1 को 0 पुट करते हो तो P1 0 आता है, तो ये पॉइंट आ गया। और अगर पाई 1 को आप 0 पुट करते हो तो आपके पास आएगा अल्फा माइनस सी Q1 माइनस Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, Q1 अल्फा माइनस सी माइनस Q1 इज इक्वल टू 0 और Q1 की वैल्यू आ गई अल्फा माइनस सी, तो ये पॉइंट क्या है, अल्फा माइनस सी। हाँ, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेके इसका बेस्ट रिस्पॉन्स निकालो तो ये जो फंक्शन है पाएगा डी पाई 1 ओवर डी Q1 is equals to alpha minus c minus 2 Q1 is equals to 0. So Q1 is equals to alpha minus c by 2. So ये क्या है, Q1 is equals to alpha minus c by 2. तो ये आपका आ गया बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन आ गया ऑफ द फर्म 1। और इसमें जो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है वही उसका ऑप्टिमल प्रोडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी फर्म नहीं है, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। सो यही अब इसका बेस्ट रिस्पॉन्स है और यही इसकी ऑप्टिमल क्वांटिटी है जो कि वो प्रोड्यूस करेगी। तो इफ द फर्म इज मोनोपोली इट विल प्रोड्यूस Q स्टार इक्वल्स टू अल्फा माइनस सी बाई 2। क्या प्राइस को चार्ज करेगी, प्राइस देखें, प्राइस को देखते हैं। प्राइस हो जाती है अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2। अब Q2 इसमें 0 है तो ये अल्फा माइनस Q1 हो गया। अल्फा माइनस Q1 1 की वैल्यू है अल्फा माइनस सी बाई 2। सिंप्लीफाई करें, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है जी, प्लस सी बाई 2, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास अगर हम कर रहे हैं अल्फा को बाहर निकालें तो 1 माइनस 1 बाई 2 बनता है, प्लस सी बाई 2 बनता है। तो ये 1 बाई 2 ऑफ अल्फा प्लस सी बाई 2 विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस सी बाई 2। ये आपकी प्राइस आ गई इसमें, ठीक है जी। और जो प्रॉफिट है यानी क्वांटिटी आपकी आ गई Q स्टार अल्फा माइनस सी बाई 2 P स्टार अल्फा प्लस सी बाई 2। और प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू P टाइम्स Q1 माइनस T टोटल कॉस्ट विच इज C टाइम्स Q1। सो P है अल्फा माइनस Q1 माइनस Q2 इंटू Q1 माइनस C टाइम्स Q1। सो ये आ जाएगा अल्फा माइनस Q1, क्योंकि Q2 0 है तो अल्फा माइनस Q1 इंटू Q1 माइनस C Q1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस C इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस सी। Q1 की वैल्यू क्या निकाली हुई है हमने, ये पीछे पड़ी हुई है, ये है अल्फा माइनस सी हाँ ओवर 2। तो इसको मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, अल्फा माइनस सी ओवर 2 माइनस अल्फा माइनस सी ओवर 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, ये अल्फा माइनस सी और ये अल्फा माइनस सी, अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा माइनस सी का स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर। तो 2 अल्फा माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 1, तो इस लाइक अल्फा माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये क्या आ गया, ये आपके पास प्रॉफिट स्टार आ गया। ओके, तो इस तरह ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स कंपेयर करें। हाँ, ये आ सकते हैं यहाँ पे।